Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. बच्चों, वैसे देखा जाए तो कल मैंने सर्कल टॉपिक शुरू किया था, मगर बाद में थोड़ा मुझे ध्यान में आया कि ट्रायंगल्स का पहले कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में सर्कल्स करेंगे. जो मैंने पढ़ाया उसके आगे का हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, मगर वास्तव में ट्रायंगल्स पहले कंप्लीट करना है. तो देखिए बच्चों, ट्रायंगल्स के बारे में आप जैसे मैं इफ़ आई यूज़ द वर्ड ट्रायंगल, यू विल से सर 9th स्टैंडर्ड में भी ट्रायंगल चल रहा है सर, 10th स्टैंडर्ड में भी ट्रायंगल चल रहा है, व्हाट इज़ दिस सर. तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमेशा चलते रहेगा. कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी या स्टडीड. कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको क्या बताया था, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ यू सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर देन दे शुड बी सिमिलर साइज एंड शेप. जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे मैंने रख दिया तो ये क्या होगा, सिमिलर साइज और शेप होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा. पेज, किताब के पन्ने एक के ऊपर एक, इफ यू सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर देन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू. मगर मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता हूं. मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए थे. एक ही कंपनी के मोबाइल मैंने आपको दिए थे और एक ही साइज़ का शर्ट्स आपको बताया था, एक ही शर्ट्स का एक ही नंबर वाला बनियंस आपको बताया था एग्जाम्पल में, मगर एक ही साइज़ का टूथपेस्ट मैंने बताया था. मगर थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ. पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स. फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन टू सिमिलर फिगर्स, फिर सिमिलर फिगर्स इन ज्योमेट्री और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या है. ये हमारा 3 टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं. पहले सिमिलैरिटी इन नेचर हम लेंगे. नेचर के अंदर सिमिलैरिटी कहाँ आती है बच्चों? मैंने कहा दोनों हाथ को जोड़ दीजिए, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है.
मगर अगर मैं कहूँ कि आप अपना हाथ ले लीजिए और छोटे बच्चे का हाथ आप ले लीजिए, क्या वो सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा? सर कैसे होगा सर? सेम दिखाई देगा क्या? हाँ सर दिखाई देगा। उसको भी 5 उंगली है सर, आपको भी 5 उंगली है सर। तो दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दे लुक अलाइक, दे लुक अलाइक। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे बनियन की बात कर रहा था। मान लीजिए आप 90 सेंटीमीटर का आप बनियन यूज़ करते हो, 85 या 80 सेंटीमीटर का यूज़ कीजिए, आपके छोटे भाई का यूज़ करते हो, तो क्या सेम होगा? बनियन विल बी अलाइक बट दे आर नॉट इफ यू सुपर इम्पोज नहीं। तुम्हारे ही खुद के अगर 2 बनियन एक के ऊपर एक रखोगे तो सेम होगा, मगर दूसरों का रखोगे तो अपने 2 भाई का रखोगे तो नहीं होगा। चप्पल का नंबर ले लीजिए आप, तुम मान लीजिए 6 नंबर का 7 नंबर का चप्पल पहन रहे हो, तुम्हारा भाई अगर 5 नंबर का उसी कंपनी का पहन रहा है तो दे विल लुक अलाइक बट दे विल नॉट बी सेम। टूथपेस्ट की बात करोगे आप, टूथपेस्ट अगर मान लीजिए 250 ग्राम का रखा आपने, फिर अगर मान लीजिए 50 ग्राम का लिया, 100 ग्राम का लिया तो अलग होगा। तेल की डिब्बी आप ले लीजिए, तो सेम लोगे तो सुपर इम्पोज करने पे सेम होगा, मगर अगर अलग अलग साइज का लोगे तो सेम नहीं होगा। मोबाइल्स के अगर कंपनी लोगे तो उसी कंपनी का छोटा बड़ा लोगे तो अलग होगा। पेड़ पत्ते ले लीजिए आप बच्चों, सेम एज ग्रुप वाले अगर पत्ते हैं तो सेम दिखेंगे, मगर अगर नया पत्ता निकल रहा है तो छोटा सा नया पत्ता वो बड़े पत्ते की तरह होगा मगर बड़े पत्ते के बराबर नहीं होगा। या फिर अगर हाथी और हाथी का बच्चा आप ले लीजिए, 2 सेम हाथी ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे, मगर एक बड़ा हाथी और एक छोटा हाथी हो तो दे विल लुक सिमिलर। तो मेरे ख्याल से आपको अब कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में मैंने आपको बताया था, अब ये सिमिलैरिटी क्लास 10th में बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन नेचर कॉन्ग्रुएंट थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल, सिमिलर थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल। तो अब हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स व्हाट? 2 फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड शेप। If you superimpose them over each other, then we will not be able to distinguish between the two. Differentiate नहीं कर सकते हैं। तो next आता है similar, किसको बोलते हैं? 2 figures having the same shape, दिखने में सेम होगा, and not necessarily the same size. साइज सेम होने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, चप्पल का एग्जाम्पल बताया, पेड़ के पत्तों का एग्जाम्पल बताया, हाथी और हाथी का बच्चा बताया, कुत्ता ले लीजिए, कुत्ते का छोटा सा पपी जो होता है उसका साइज मैंने आपको बताया, वो अपनी माँ की तरह दिखाई देगा मगर साइज सेम नहीं होगा। दिखने में सेम होगा मगर उसका साइज और ये शेप सेम होगा मगर साइज सेम नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। जैसे सर्कल, मैंने अगर आपको याद हो तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपको मैंने बताया था कि आपके मदर जो चूड़ियाँ पहनते हैं या फिर आपके सिस्टर जो चूड़ियाँ पहनते हैं, वो क्या करते हैं, चूड़ी वालों के पास से चूड़ी ले लेते हैं, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करते हैं और वो रेडियस ढूंढे बगैर बोल देते हैं कि सेम है। मगर उसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं ट्विस्ट कर दूं बच्चों, तुम्हारे मदर जो चूड़ियाँ पहनते हैं और छोटी सी सिस्टर जो चूड़ियाँ पहनती है, क्या वो सेम होगा? क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा? सर कैसे होगा सर? उसका तो रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है। दिखने में कैसा है दोनों? सर दोनों सेम है दिखने में। सो दैट्स व्हाट इज सिमिलैरिटी। सो यहाँ पर हम आपको सिमिलैरिटी क्या एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको? 2 सर्कल्स विथ डिफरेंट रेडियाई, दे आर सिमिलर। यहाँ पर ट्रायंगल्स आप देखिए, तो यहाँ ट्रायंगल्स के अंदर अगर मैंने 2 ट्रायंगल्स ले लिए तो ये ट्रायंगल का ये साइड 4 है, 4 है, 4 है, ये 2 है, 2 है, 2 है, और इसके सारे एंगल्स 60 है, 60 है और 60 है, यानी सारे एंगल्स क्या है? इक्वल है 60। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि ये 1:2 रेशियो में है। देखिए आप इसका साइड ये इसका दुगना है, ये डबल है, यहाँ पर भी डबल है, सारे एंगल सेम है। ये बड़ा ट्रायंगल आप कह सकते हो, ये छोटा ट्रायंगल आप कह सकते हो। यहाँ देखिए आप, ये भी इसका 2 गुना है, ये भी, दिस इज ट्वाइस एवरी एंड ऑल द एंगल्स आर ऑलमोस्ट equal. So such kind of figures are called as similar figures. यहाँ पर आप देखिए एक रेक्टेंगल बड़ा वाला है, एक रेक्टेंगल छोटा वाला है, ये सिमिलर है। सेम होता तो कॉन्ग्रुएंट होता। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप ही का पोस्ट कार्ड साइज का फोटो और आप ही का स्टैम्प साइज का फोटो सिमिलर है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप ही का
पासपोर्ट साइज का फोटो और आप ही का स्टैम्प साइज का फोटो सिमिलर है, तो देयर शेप्स आर सेम बट देयर साइजेस आर डिफरेंट। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिमिलर पॉलीगॉन्स का मतलब होता है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal, their corresponding sides are same or same proportion। Similar triangle किसको कहोगे सर? Two triangles are similar if their corresponding angles are equal, their corresponding sides are in the same ratio। कर सारे एंगल सेम है बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शन में है 1:2, ये भी 1:2, 1:2, यहाँ पर भी 1:2। जरूरी नहीं है कि 1:2 होना चाहिए, इट कैन बी समथिंग एल्स अदर देन दैट। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। Just let us see how whatever I explained about the similarity and congruency is going to help us to solve the first exercise of your textbook। The first exercise of our textbook reads like this: fill in the blanks, all circles are congruent and similar, two options are there। Children, just think of, can you have 2 centimeter radius, 3 centimeter radius, 4 centimeter radius and 5 centimeter radius and keep over each other, and will they be congruent? No sir. Will they look alike? Yes sir. If they will look alike, then all circles are similar is the correct answer. They cannot be congruent। Similarly, all squares are, just imagine 5 centimeter square, 6 centimeter square, 7 centimeter square, 8 centimeter square। If you superimpose over each other, एक के ऊपर एक अगर रखोगे तो क्या सारे सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होगा सर। क्या दिखने में सेम होंगे? हाँ सर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो दिखने में सेम होंगे तो उसको कहा जाता है सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा। बच्चों इक्विलैटरल अगर होता है तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर सारे एंगल ऑलरेडी 60 है तो साइड्स प्रोपोर्शन में ही होंगे, इसीलिए जवाब आना चाहिए इक्विलैटरल। जवाब आना चाहिए इक्विलैटरल। Two polygons of the same number of sides are similar if a their corresponding angles are, corresponding angles क्या होना चाहिए बच्चों? आपको बताया था मैंने, corresponding angles क्या होना चाहिए? Equal। Their corresponding sides are proportional। क्या होना चाहिए? Proportional में होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल दीजिए। अब भी मैंने आपको दिया बच्चों, सारे सर्कल्स, ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडिया, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स या ऑल स्क्वायर्स, ये सारे क्या है? सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल है। नॉन सिमिलर फिगर्स अगर आपको चाहिए बच्चों तो सर्कल ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर ट्रायंगल हो सकता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो आप जितना चाहे उतना एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहाँ थोड़ा बच्चे धोखा खा जाते हैं। द स्टूडेंट फील दैट सर द रेशियो इज 1:2। सर ये 1.5 3 होगा, 1.5 × 2 3 होगा। सर ये 1:2 रेशियो तो है, सिमिलर है सर, अभी तो आपने कहा था। बच्चों मैंने जो कहा था शायद आपने अगर आप हाँ बोल रहे हो तो ये आपका जवाब गलत है। मैंने ये कहा था कि साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाना चाहिए मगर एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, इसीलिए मैं कहूँगा एंगल्स आर नॉट इक्वल, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इसीलिए मैं इसको कहूँगा डिसिमिलर फिगर्स। डिसिमिलर फिगर्स। तो इसी के साथ आपका पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया।
कल हम एक नए टॉपिक के साथ ट्रायंगल्स टॉपिक में आपके सामने हाजिर होंगे।